And welcome to Internet Programming Tutorial Series, and also we called as a Full Stack Development Series. So that lecture number 6, I think, and that the today topic is nothing as a promise. Okay, what a promise. Last lecture what discuss about the generator, but today what we discuss about the promise. The promise is the name suggests that whatever the promise we have to given or taken, that is the surety. Okay, but that's the surety which is in a 3 phases. Okay, so we right now we want taken the example regarding, and according to we explain that the promises are there. Okay, so suppose I have one scenario, and teachers, okay, one day they taken one meeting, and the students, they are in that meeting, and they given the promises or taken the promises from the students. What kind of the promises are given from the students? The sir or the teachers, they told, I have one video. Okay, that video I will display or I will publish in YouTube tomorrow 10 a.m. Okay, tomorrow 10 a.m. So please watch the video. Once I publish that the video in YouTube, please you watch the video. Okay, so that time the students are there. Okay, and the students, they given the promise, yes sir, I will definitely will watch the video, but that time the 3 conditions are there. Okay, what the conditions? Still the tomorrow the 10 a.m. the students in a pending way and a pending conditions or pending state. Okay, it means what? वो अभी तक दोपहर दूसरे दिन के 10 बजे तक वो क्या है, पेंडिंग में है, पेंडिंग स्टेट में है, अभी तक वो कल आया नहीं है और 10 बजे नहीं है, तो वो सारे क्या हो गए आपकी प्रोमिसेस राइट नाउ इन अ पेंडिंग स्टेट में हो गया, पेंडिंग कंडीशंस में हो गया. बट सेकंड थिंग इज व्हाट, अगर दैट द नेक्स्ट डे द 10 AM इज डन, ओके, एंड दैट the students, they watch the video. Okay, and after that watch the video, what they implement whatever the told the instructions as it is. Okay, it means what, we watch the video and we resolve or we follow all the restrictions. It means what, we resolve your promises. Okay, then third is what, the reject. The reject is nothing as what, who ones are given the promises, okay, they are not follow the promises actually, and they are what, they are not interested to watch the video at tomorrow 10 a.m. Okay, after the 10 a.m. those who are not watch the video, it means what, they are rejected, they are not interested, they whatever the given the promises. Okay, so that are 3 conditions we have. So pending, resolve and reject. मतलब अभी तक तो देखा नहीं है, जब 10 बजेंगे तभी वो आपकी फुलफिलमेंट होगी प्रोमिसेस की. चलो 10 बज गए, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे वॉच किया है वीडियो, और उसके बाद वॉच करने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे फॉलो करने के लिए, वो फॉलो किए. और नेक्स्ट है आपका रिजेक्ट. रिजेक्ट मतलब क्या, प्रोमिसेस करने के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, वो जो प्रॉमिस किया था वो फॉलो नहीं किया, या उसको नज़रअंदाज नहीं किया, उसको छोड़ दिया, उन्होंने देखा ही नहीं वीडियो. ओके, सो दैट इज व्हाट, these are the scenario. Okay, the second scenario is nothing as what, the promises right now here, what we have the one we call as object. That object, okay, they are having the 2 functions or 2 parameters, and that we call as the functions. Okay, first is resolve and second is the reject. Okay, एक ऑब्जेक्ट के बीच में 2 फंक्शंस रहेंगे, रिजॉल्व और एक रिजेक्ट. मतलब जिन लोगों ने वीडियो देखे थे उनका रिजॉल्व हो गया, जिन लोगों ने नहीं देखे उनका रिजेक्ट हो गया. बट रिजॉल्व होने के बाद किन किन लोगों ने रिजॉल्व किया वो भी मुझे अगर डिस्प्ले करना है. यहाँ पे सिर्फ जो लॉजिक था वो क्लियर हो गया, बट किन लोगों ने देखा था वो लॉजिक का जो सिनेरियो है वो डिस्प्ले करना है, तो आपको देन मेथड से ही करना पड़ेगा. ओके, दैट इज द मेथड्स. ओके, ऑब्जेक्ट के ये मेथड्स है, रिजॉल्व, रिजेक्ट, और वी कॉल इट द फंक्शन. ओके, देन, एंड अगर जिन लोगों ने रिजेक्ट किया है वो किन किन लोगों ने किया है वो कैच मेथड से हम देख सकते हैं. ये कोड हो गया एक प्रकार के. ओके, तो ब्लॉक कोड हो गए. ओके,
तो ये सारी मेथड्स हमें वहाँ पे यूज़ करनी है इस प्रोमिसेस के रिगार्डिंग। ओके, बेसिकली ये यूज़ होता है क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए। ओके, अगर सर्वर की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट आता है एज अ फ्रंट एंड पे, क्लाइंट साइड पे, तो थोड़ी देर के बाद या सम कंडीशंस टाइम के बाद उसको वो सारा डेटा फेच करने के लिए मिलता है। तो वो सारी कंडीशंस इस प्रोमिसेस में हम कन्वर्ट करते हैं इन जावास्क्रिप्ट। तो कैसे करते हैं, दैट इज़ द पॉइंट। ओके, तो उसके लिए है ना, पहले मुझे इस सबलाइम एडिटर में जाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और बोलता हूँ F7। आई थिंक 7 लेक्चर्स है, नॉट 6 लेक्चर। ओके, तो यस, मैंने इसको सेव कर दिया HTML से, और मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ पहले, तो मतलब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ओके, तो स्क्रिप्ट टैग ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे आया मैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि प्रॉमिस नाम का जो भी कुछ है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप सारे मेथड्स को ट्रैक करेंगे, और ट्रैक करने के बाद जो एक एक मेथड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि न्यू नाम का कीवर्ड होता है, और ये प्रॉमिस जो होता है वो इस मेथड में मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं कॉल कर दूंगा। मतलब इस प्रॉमिस के बीच में सारे ऑब्जेक्ट के बीच में सारे आपके मेथड्स है, जैसे रिजॉल्व, रिजेक्ट के, देन एंड कैच। ओके, तो मैं उसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, प्रो रख देता हूँ मैं, प्रॉमिस इसका प्रो। ओके, और इस तरह से मैं उसको डिक्लेयर कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं उसको एक मेथड के थ्रू भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, बट मेथड के थ्रू मैं, मेथड और फंक्शन के थ्रू भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, बट उसको कैसे डिक्लेयर करना है वो मैं बाद में देखता हूँ। जैसे प्रॉमिस आपका डिक्लेयर होता है, ओके, ये ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसके बीच में मुझे क्या करना पड़ता है, कॉल बैक फंक्शन कॉल करना पड़ता है। यू नो द कॉल बैक फंक्शन, हमने फंक्शन में, हमने लूप में देखा था। ओके, फंक्शंस, तो इसको ब्रैकेट में हम देंगे रिजॉल्व, जो आपके 2 पैरामीटर हैं, जो कि वो फंक्शन है कामा एंड देन रिजेक्ट, ये 2 फंक्शन है। ओके, तो मैं उसको यहाँ से कॉल करूँगा जैसे मैं कॉल बैक फंक्शन में कॉल करता था यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से बन गया। बट यहाँ पे मैं कंडीशन रखूँगा कि अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो मेरा रिजॉल्व होगा। मतलब जो लोगों ने वीडियो देखा है, वॉच किया है, वो क्या होंगे, उनकी रिजॉल्व हो गए कंडीशंस। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एल्स कंडीशन में जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ ऊपर, और उस वेरिएबल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, मेरे पास एक वेरिएबल है, सपोज कुछ भी नाम ले सकता हूँ मैं वेरिएबल का, p, और मैं उसको एक नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ 60। ओके, अभी 60 को मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ कंडीशन लेता हूँ, अगर p इज़ ग्रेटर देन 60 है, मतलब क्या, इफ p इज़ ग्रेटर देन 60 मतलब क्या, आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो रिजॉल्व होगी। ओके, तो क्या, एज अ रिजॉल्व आपकी कंडीशन हो जाएगी। ओके, यस, इट इज़ रिजॉल्व, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। ओके, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। सेम सिनेरियो किसके बारे में होगा, अगर 60 के आगे नहीं है, 60 के नीचे है, तो वो क्या होगा, फिर वो एल्स कंडीशन में जाएगा यहाँ पे, और एल्स कंडीशन में आपका क्या होगा, यहाँ पे रिजेक्ट, जो भी कुछ होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जिन लोगों ने वीडियो देखा है वो रिजॉल्व हो जाएगा। यस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच द वीडियो, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। रिजेक्ट इज व्हाट, द नो वन स्टूडेंट्स कैन वॉच द वीडियो। ओके, सो इन दैट वे व्हाट वी कैन रिजेक्ट, वी कैन टेकन, इट इज नॉट, यस इट इज नॉट रिजॉल्व, ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, नॉट रिजॉल्व और नॉट रिजॉल्व। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या किया, ये कंडीशन लिख दिया और फंक्शन को कॉल कर दिया। अभी अगर मुझे फंक्शन को यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बना दी एल्स में, ओके, रिजेक्ट की, तो अगर मुझे उसको डिस्प्ले करना है, इनिशियली अगर मैं जो डिस्प्ले करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ओके, और मुझे प्रो नाम का जो भी कुछ ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो देखना पड़ेगा यहाँ पे, और वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा
उसको कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करके मैं उसकी वैल्यू चेक कर सकता हूँ कि ये प्रोमिसेस का जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसके बीच में जो पैरामीटर्स है, 2 रिजॉल्व और रिजेक्ट और फंक्शन यहाँ पे कॉल हुए वो करेक्ट है या नहीं है। अगर रन होते तो इट्स ओके। ओके, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी पाथ और ब्राउज़र पे जाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करता हूँ और एंटर मारता हूँ। ओके, उसको राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट बोलता हूँ और कंसोल पे जाता हूँ। तो क्या बोल रहा है, एरर आया है, अनकॉट इन प्रॉमिस नॉट रिजॉल्व्ड। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने प्रॉमिस पे गया तो उसने क्या किया, कंडीशन जो थी आपकी वो क्या बोली, उसने रिजेक्ट कर दी। प्रोटो में जाने के बाद रिजेक्ट कर दी और प्रॉमिस वैल्यू का ही नॉट रिजॉल्व, मतलब वो क्या है, अभी कंडीशन आपकी p इज लेस दैन इक्वल टू 60। अगर मैं यहाँ पे 70 डाल देता हूँ, ओके, तो 70 डालने के बाद मैं अगर ब्राउजर पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, व्हाट द प्रॉमिस रिजॉल्व, यस इट इज रिजॉल्व। ओके, मतलब उसने कंडीशन वो ले रहा है। ओके, नॉट में भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लेस देन डालता हूँ, यहाँ पे 50 डाल देता हूँ, चलो। ओके, डालने के बाद मुझे क्या होगा, फिर यहाँ पे मुझे ब्राउज़र पे जाके उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अनकॉट इन प्रॉमिस नॉट रिजॉल्व, मतलब जो था उसने नहीं किया इसलिए उसने वो एरर दे दिया। ओके, ये एरर आएगा ही, कैश में उसने पकड़ लिया उसको, कैश जो ब्लॉक रहता है, ओके, उस ब्लॉक में पकड़ लिया, इसलिए उसने वो रिजॉल्व वाला आउटपुट दे दिया, एरर वाला आउटपुट दे दिया। ओके, तो ये सिनेरियो यहाँ पे बनेगा। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट राइट नाउ, ये तो मुझे दिख रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ओके, वो एज अ प्रोटो दिख रहा है मुझे। ओके, ये जो दिख रहा है प्रोटो दिख रहा है। अगर मुझे इसको कंसोल पे लाना है, कंसोल पे तो दिख रहा है बट मुझे आउटपुट नॉट रिजॉल्व ही लाना है, खाली नॉट प्रोमिसेस के बीच में, ना ऑब्जेक्ट के बीच में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला आपको कि आपको यहाँ पे इसकी जो प्रोमिसेस की जो मेथड्स है, फंक्शंस है, उनको कॉल करना पड़ेगा। तो मुझे ना, मैं उसको कॉल एक अलग तरीके से करता हूँ यहाँ पे। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा वेरिएबल था या ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल था उसको मैं लेता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ प्रो डॉट देन। ओके, देन के थ्रू ही आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। मैंने उसको एंटर किया, फिर प्रो डॉट देन, जो भी कुछ जो भी कुछ एरर आएगा वो कैश में स्टोर हो जाएगा। ओके, मतलब अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है तो वो देन में जाएगा, और देन में जाने के बाद जो वैल्यू है, यस इट इज रिजॉल्व, वो एज अ कंसोल पे आपको दिखेगी एज इट इज, ना कि प्रॉमिस के साथ। ओके, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के साथ। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ओके, कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं आप, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ यस रिजॉल्व की जो है वो है ट्रू कंडीशन है। ओके, TRE ट्रू। ओके, रिजॉल्व ट्रू होता है। अगर यहाँ पे रिजेक्ट जो है वो फॉल्स होता है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इस वेरिएबल का, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल को लिख लेता हूँ, या सॉरी इस तरह से लिखता हूँ, लेट ट्रू रिजॉल्व ट्रू, सॉरी UE इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, इसको फंक्शन को, ये जो दिख रहा है आपको लेस ट्रू, ये कहाँ पे आया मालूम है कि आपको, ये इस पे आया है रेस ट्रू पे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फंक्शन एरो फंक्शन से कॉल करता हूँ यहाँ पे, और एरो फंक्शन पे कॉल करने के बाद मैं उसको ओपन करली ब्रेसेस, क्लोज करली ब्रेसेस से कंसोल पे लाने की कोशिश करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर रिजल्ट कुछ भी ले सकता हूँ मैं वेरिएबल, यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर रिजल्ट पास कर दिया। मतलब आपको समझ में आया क्या हो गया। ओके, यस, अगर आपकी कंडीशन रिजॉल्व या सक्सेसफुल है, ओके, तो ये जो आपका वैल्यू है, ये जो कुछ रिजल्ट है रिजॉल्व में आया हुआ, यस इट इज़ रिजॉल्व, वो कहाँ पे आएगा, इस रिजल्ट में आएगा। इस रिजल्ट में आने के बाद वो कंसोल पे दिखेगा। और ये किसका वेरिएबल का है, एरो फंक्शन, ये इस फंक्शन का है, किसका, रिजॉल्व ट्रू का। तो रिजल्ट ट्रू किस में कॉल किया है मैंने, देन में। तो देन में क्या होता है, ये इसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को, यहाँ पे आया है फंक्शन में क्या है, रिजल्ट का वेरिएबल है जो कि है ये है, और उसको
वो रन कर देगा। ओके, अगर नहीं है तो क्या होगा फिर? यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, एग्जैक्टली मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेट क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा रिजेक्ट फॉल्स। तो यहाँ पे कुछ एरर आएगा और वो भी डिस्प्ले चला जाएगा। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, ER दे देता हूँ, एरर, सॉरी, ओके, और वो एरर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ERR यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कंसोल के लास्ट में सेमी कॉलन, यहाँ पे भी सेमी कॉलन। ओके, मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया। अभी देखते इसका आउटपुट आता है कि नहीं। इसको मैंने यहाँ पे एज अ कमेंट कर दिया, तो मैंने इसको सेव किया। समझ में आया कि आपको कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इस रिजल्ट, मतलब ये वाला रिजल्ट का रिजल्ट वो कंसोल पे लाया। ओके, बट ये जो फंक्शन था वो किस वेरिएबल में है? इस वेरिएबल में है। ओके, और ये वेरिएबल किसको? देन को कॉल कर रहा है। तो देन को कॉल करने के लिए ये सारा मैंने स्ट्रक्चर बनाया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्राउज़र पे जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो क्या बोल रहा है? नॉट रिजॉल्व, और वो कॉड भी हो रहा है क्योंकि सेकंड टाइम मैंने इसको कॉल किया। ओके, अगर इन केस मैं उसको वैल्यू यहाँ पे 70 दे देता हूँ, 80 दे देता हूँ। ओके, 80 मैंने दे दिया और मैं उसको सेव किया और ब्राउज़र पे आया, उसको रिफ्रेश किया, यस इट इज़ रिजॉल्व्ड। ओके, अगर नहीं होता है तो वो एरर वाली भी उसको वो क्या करेगा? कंडीशन देगा, मतलब ये वाली। अगर नहीं है तो रिजेक्ट तो कॉल होगा ही, बट उसका जो कैश का जो भी कुछ ब्लॉक है वो भी कॉल होगा, और कॉल होने के बाद उसको वो एरर दिखाएगा। ओके, तो ये वाला इसमें फीचर है। ओके, देन अभी क्या हो गया कि ये जो प्रो और देन कैश था वो क्या हो गया, मैंने यहाँ पे कॉल किया था। अगर मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे जाके फिर इसको वेरिएबल में डाला, फिर इसको वेरिएबल में यहाँ पे डाल दिया, तो बेटर दैन मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ना कॉपी करता हूँ। यहाँ पे ये पूरे फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, एरो फंक्शन को कॉपी करता हूँ और इस वाले वेरिएबल में डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे डालने के बाद उसको सेव किया। फिर इसको भी, ये फंक्शन को भी मैं क्या करता हूँ, एरो फंक्शन को कॉपी करता हूँ और मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, जैसे मैंने पेस्ट किया, सेव किया, ओके, तो मैं उसको निकाल देता हूँ यहाँ पे से। तो देखो तो आपका कोड कितना यहाँ पे छोटा हो गया। ओके, मैंने उसको सेव किया और मैंने उसको अभी ब्राउज़र पे आया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो वही आउटपुट मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह से आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड थिंग क्या है, अभी मैं इस प्रॉमिस का जो ऑब्जेक्ट है वो फंक्शन के थ्रू भी कॉल कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले सकता हूँ, फंक्शन, और मैंने बोला कि फंक्शन प्रो, वही फंक्शन लेता हूँ मैं और मैं बोलता हूँ फंक्शन को ओपन किया, और मैंने क्या किया, इस फंक्शन को ओपन करने के बाद इसके लास्ट में मैंने उसको एंड कर दिया। अभी फंक्शन प्रो को मैंने तो कॉल कर दिया, बट ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न तो करेगा। ओके, यस इट इज़ रिजॉल्व या नॉट रिजॉल्व। आपने देखे थे कि फंक्शन 3 टाइप के होते हैं, पैरामीटर्स फंक्शन होते हैं, फिर रिटर्न फंक्शन होते हैं और नॉर्मल फंक्शन होते हैं। ये नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो मैं इसको निकाल दूंगा यहाँ पे, ये वेरिएबल को, और मैं बोलता हूँ कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पे रिटर्न तो ज़रूर करेगा। ओके, यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, फिर वो ये जो कुछ भी आउटपुट आएगा तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अभी रिटर्न करने के बाद यहाँ पे इस प्रो में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को मैं अभी कमेंट दे देता हूँ यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू पास कर देता हूँ। अभी ये फंक्शन है तो फंक्शन के बीच में मैं एक वैल्यू पास कर सकता हूँ। सपोज जैसे मैं किया 70, कितना 70, और यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ 70, कितना 70। ये मैंने उसको सेव किया, बट ये फंक्शन जो प्रो है, ओके, यहाँ पे 70, बट यहाँ पे मैंने वैल्यू पास की है क्या? नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे p डाल देता हूँ। ओके, तो p यहाँ पे चला गया, p यहाँ पे इसने ले लिया, इसकी 70 वैल्यू यस ग्रेटर दैन है। तो हमें देखना कि एरर क्या आता है या नहीं आता है। ओके, फिर हम ब्राउज़र पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, यस इट इज़ रिजॉल्व। सपोज मैं
इस पे वैल्यू डाल देता हूँ 60 ओके, और सॉरी नॉट 60, 50 डाल देता हूँ, चलो 50, और यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 50 ओके। 50 डालने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं ब्राउज़र पे आऊँगा, सेव किया पहले मैंने, ब्राउज़र पे आया, रिफ्रेश किया, यस नॉट रिजॉल्व, ये रिजेक्ट वाला उसने कंडीशन फायर किया। उसके बाद वो ब्लॉक जो था कैश का, उसने वहाँ पे उसको कॉल किया, उसको अनकॉट एरर बोल दिया ओके। ये दोनों चीज़ यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर फंक्शन को कॉल करके इसकी जो वैल्यू थी फंक्शन की ओके, उसको कॉल बैक फंक्शन की, उसको रिटर्न कर दिया, ट्रू फॉल्स जो भी आएगा कुछ ओके। और उसको मैं एक छोटा कर सकता हूँ। किस तरह से कर सकता हूँ छोटा, अगर मैंने यहाँ पे 2 प्रो कॉल किए, चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि उसको निकाल के यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ ओके। अगर मैं यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने चेनिंग ऑफ प्रोमिसेस यहाँ पे बना ली। मतलब कि मैं एक प्रो से दूसरे ये वाला देन भी फंक्शन में कॉल कर सकता हूँ, कैश भी फंक्शन में कॉल कर सकता हूँ ओके। तो मुझे ये एक प्रो से अगर 2 प्रो कर रहा हूँ तो मतलब क्या सेपरेट सेपरेट रिजल्ट आ रहे हैं ओके। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे देखूँ, मैंने सेमी कॉलन लगाया फिर से, और मैं इसको मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, उसको रिफ़्रेश करता हूँ ओके। तो क्या हो रहा है कि नॉट रिजॉल्व, ये किसका रिज़ल्ट है, ये वाले पहले प्रो का मैं कॉल कर रहा हूँ कंसोल का, मतलब वो रिज़ल्ट फॉल्स है, तो ये फॉल्स में ये रिजेक्ट में आ रहा है बराबर। सेकंड टाइम क्या हो रहा है कि प्रो में फिर से कॉल कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, प्रो में फिर से कॉल कर रहा हूँ, और वो क्या हो रहा है, कैश ब्लॉक में जा रहा है, कौन से कैश ब्लॉक में जा रहा है, और वो वाला जो आंसर है कॉट अनकॉट एरर वो दिखा रहा है यहाँ पे, ये वाला आई थिंक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। चलो मैं इसको क्या करता हूँ कि एक ही मुझे आउटपुट चाहिए, ये वाला नॉट रिजॉल्व वाला ही चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेनिंग ऑफ प्रोमिसेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट लगा देता हूँ और मैं उसको ऊपर लेके आता हूँ बराबर, और इस प्रो को मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मैं अगर डॉट लगाता हूँ तो चेन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ बिलोंग्स टू दैट द सेम फंक्शन ओके। तो यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, और मतलब आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। सॉरी, कंसोल लास्ट में आया, फिर टैब दबाया कैश, और उसके बाद ये वाला आता है, तो वेरी गुड ओके दिस वन। तो मैंने उसको सेव कर दिया, और ब्राउज़र पे आता हूँ, चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे ओके। देखो कि एक ही प्रो में एक ही फंक्शन जो ट्रू और फॉल्स जो भी कुछ देन और कैच है वही एग्जीक्यूट होगा। अगर रिजॉल्व हुआ होगा क्वेश्चन पी इज लेस देन इक्वल टू 50, यस जो भी कुछ होगा वो आंसर आएगा, और बाकी का वो कैश में जाएगा ही नहीं, सॉरी कैश में गया, रिजॉल्व में गया ही नहीं, तो कैश का जो भी कुछ था वो यहाँ पे उसने दिखा दिया ओके। सेकंड टाइम वो कैश के ब्लॉक में नहीं जाएगा। दैट इज़ द थिंग, सिंपल थिंग वी हैव राइट नाउ हियर। तो ये वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। अभी मुझे क्या करना है कि ये सिनेरियो में है ना कि अगर मैं सर्वर और क्लाइंट का सिनेरियो देखूं ओके, तो यहाँ पे प्रॉमिस मेथड हम यूज़ करते हैं। तो अगर सर्वर से डेटा आता है ओके, अब सर्वर से डेटा जल्दी नहीं आ रहा है ओके, उसको फेच करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास पेंडिंग नाम का जो भी कंडीशन था, यहाँ पे देखो ये वाला पेंडिंग, वो यहाँ पे काम आएगा ओके। जैसे कि सर्वर की तरफ से डेटा मेरा यहाँ पे आ रहा है तो थोड़ा लोडिंग करने के लिए टाइम लगेगा, अगर ज़्यादा डेटा है तो उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन है, तो फंक्शन को मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा, और कॉल करने के बाद वो जो अभी करंट स्टेट है वो पेंडिंग में रहेगा या लोडिंग में रहेगा, ऐसा मुझे दिखाना पड़ेगा ओके। तो दिखाने के बाद आफ्टर सम टाइम्स व्हाट वी गॉट द डेटा, जो भी कुछ रिजॉल्व है नहीं रिजॉल्व है वो वाला ओके। अगर मैं ऐसा सिनेरियो यहाँ पे लेके आऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कंसोल नाम का फंक्शन है आपके पास, सॉरी एक फंक्शन है लॉग यहाँ पे, और मैं बोलूँगा यहाँ पे लोडिंग जो भी कुछ होता है आपका यहाँ पे ओके। उसके बाद मैं इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ। उसके बाद अगर मुझे सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन लेना है तो ऐसे लिख सकते हैं हम, सेट टी कैपिटल टाइम आउट, और उसके बीच में मैं एक एरो फंक्शन कॉल करता हूँ ओके। यहाँ पे मेरे पास एरो फंक्शन है ओके,
और मैंने उसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद उस सेट टाइम आउट में एक्चुअली दो कंडीशंस होती हैं। एक तो आपका जो भी कोई लॉजिक है वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मेरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है माउस का। ओके, ये वाला लॉजिक मैंने क्या किया, इसको कट किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, तो यस, इसके बाद मैंने क्या किया, जो ये वाला एरो कर्ली ब्रेसेस था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको क्लोज किया, उसको कॉमा दे दिया। ओके, और कॉमा देने के बाद कितने सेकंड्स के बाद आपको दिखाना है, तो मैं डालूंगा यहाँ पे 4000 सेकंड के बाद, मतलब 4000 मिली सेकंड, मतलब सेकंड 4 सेकंड। ओके, और उसके बाद मैंने राउंड ब्रैकेट है यहाँ पे, और यहाँ पे सेमी कॉलन, सॉरी नॉट सेमी कॉलन। ओके, यहाँ पे मैंने उसको क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला, ये इसका है। ओके, फिर 4000। ओके, फिर मैंने राउंड ब्रैकेट क्लोज किया। ओके, फिर उसके बाद ये वाला, ये फंक्शन है इसका रिजेक्ट का, और उसके बाद क्लोज किया ब्रैकेट। ओके, ये इसका ब्रैकेट भी मैंने क्लोज कर दिया, सेमी कॉलन दे दिया। फिर ये वाला नॉर्मल फंक्शन है। ओके, फिर ये वाला कौन सा एक्स्ट्रा आ गया क्या ये, ओके ठीक है, इट्स ओके। मैंने उसको सेव किया। ओके, और ब्राउज़र के ऊपर आया और उसको मैंने रन किया। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोडिंग, लोडिंग कितना, 4 सेकंड के बाद नॉट रिजॉल्व आ गया। ओके, चलो यहाँ पे मैंने उसको लोडिंग करने के बाद थोड़ा कम टाइम देता हूँ मैं, मतलब, और यहाँ पे 2000 सेकंड दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, और मैं उसको फिर से ब्राउज़र पे जाता हूँ और लोडिंग करता हूँ, रिफ्रेश किया, नॉट रिजॉल्व। ओके, यहाँ पे दूसरा कंडीशन भी डाल सकता हूँ मैं, 70 वाला, 70 खाली एक ही बार डाल दिया, वो ट्रू में जाएगा, यहाँ पे रिजॉल्व में जाएगा, येस इट इज़ रिजॉल्व, और फिर वो आफ्टर 2 सेकंड के बाद वो लोड होगा। ओके, तो ब्राउज़र के ऊपर आया, रिफ्रेश किया, येस इट इज़ रिजॉल्व। तो इस तरह से मैं आपका प्रोमिसेस यहाँ पे लगा सकता हूँ। ओके, तो दैट इज़ व्हाट your the promises, in that way we can resolve. And I think you like my video, so you please subscribe my video, like my video. Thank you so much.